Good morning, students. We continue the lecture on lipid. So, as we know, lipid is made up of alcohol and fatty acids. Today, we discuss the classification of lipid. Prior to that one, let we see what are the other types of aldehyde are found in the lipid. This one is the simple lipid, glycerol, where 3 fatty acid chains are attached. Instead of that one, another cetyl alcohol or myrical alcohol may be found in certain lipid. So these alcohol are of two types, saturated and unsaturated. Saturated means all four valency is attached by some group, whereas there is a presence of C double bond C. It is known as unsaturated alcohol. So what are the examples of saturated alcohol? That is cholesterol and glycerol, acetyl alcohol, myrical alcohol, what we see over here. And another is unsaturated alcohol that are found in fats and pigments, phytol, glycophyll, etc. So these are the three different types of saturated and unsaturated alcohols. Second, fatty acids. In form of short note, this is asked in the exam. Fatty acid, what is it? It is the hydrocarbon chain. You can see this is the carbon attached with hydrogen and carbon. So here there is a simple alkane chain with carboxylic group at one end. This carboxylic group is over here and this zigzag pattern. So every zigzag pattern, every angle is one carbon. Always there is a CH3 at the end and remaining is CH2, 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 CH2 and final end is COOH. The fatty acid found in lipid are of three type: short chain, medium chain and long chain. The range of chain is 4 carbon chain to 30 carbon chain. They have single carboxylic group at one end, non-polar hydrophilic tail, which give most lipid their hydrophobic and oily and greasy nature. Fatty acids do not occur in free or uncombined state in the cell or tissue, but they are present in covalently bound from different class of lipids. क्या मतलब है इसका कि फैटी एसिड जैसे एमिनो एसिड या ग्लूकोज फ्री फाउंड होती है, वैसे फैटी एसिड्स अलग होके ब्लड में सर्कुलेट नहीं होते. दे आर ऑलवेज इंटीग्रेटेड विथ glycerol and produce the fatty acids. So what are fatty acids? Fatty acids are long chain organic acid. The range is 4 to 30 carbon
atoms. They have single carboxylic group. वन एंड पे उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, ये 4 से लेके 30 की चेन रहेगी. नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, तो ये एक टेल है, ये नॉन पोलर है. दिस इज नॉट मिसिबल विथ वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगी, नॉन पोलर. और यहाँ पे माइनस चार्ज है, मतलब ये पोलर. तो ये वाटर सॉल्युबल है, पोलर, एंड दिस इज द नॉन पोलर. Fatty acids do not occur in free and uncombined state in the cell or tissue, but they are present covalently bound with the different class of lipid. तो लिपिड में ही हमें से वो एस्टर बॉन्ड से अटैच रहेंगे. फैटी एसिड विल अकर नेचुरल फैट्स एज यूजुअली मोनोकार्बोक्सिलिक एंड सर्टेन इवन numbers of carbon atom. These are synthesized from 2 carbon units. तो नेचुरली हमको अगर टुकड़े मिलेंगे लिपिड हाइड्रोलिसिस से, तो दे आर ऑलवेज इन 2n, यानी 4, 8, 16, ओके. तो 2n फॉर्मेट्स में मिलेंगे. दिस फैटी एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप. वन इज नॉन एज द सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये वाला, एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब क्या है, ये कार्बन वहाँ से दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाकी के हाइड्रोजन उस पर अटैच रहेंगे. और जो अनसैचुरेटेड है तो सी डबल बॉन्ड सी हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड हो गए. तो वो डबल बॉन्ड है वो टूट सकते हैं, यानी उसमें वैलेंसी अभी ऐड की जा सकती है. दैट मीन्स दे आर अनसैचुरेटेड. दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड. सम फैटी एसिड मे हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द चेन. हाइड्रोक्सी और ऑक्सीजनेटेड फैटी एसिड. हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या है, यहाँ पे ओ एच ग्रुप कहीं पर हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो सकता है. सो दैट इज इन अनसैचुरेटेड वन. स्टिल अदर में पजेस रिंग स्ट्रक्चर. साइक्लिक फैटी एसिड. साइक्लिक फैटी एसिड में क्या होगा, ये जो जिगजैग पैटर्न है, यहाँ पे ऐसे रिंग बन जाएगा ऐसे. फैटी एसिड स्टोर एज एनर्जी रिजर्व फूड मटेरियल एंड एस्टर लिंकेज ऑफ ग्लिसरॉल, दैट इज नॉन एज द ट्राइग्लिसराइड्स. तो ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले पढ़ा था. एक सिंपल अल्कोहल के साथ 3 फैटी चेन्स थी, बराबर. अल्कोहल कौन सा था, ग्लिसरॉल. इफ द फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द फैटी एसिड इज आयोनाइज्ड, अगर ये एस्टर बॉन्ड से निकल जाता है, सिर्फ फैटी एसिड है, तो ये हमेशा आयोनाइज फॉर्म में रहेगा, मतलब COO माइनस फॉर्म में रहेगा. COOH नहीं रहेगा, वाटर में वो COO माइनस आयोनाइज फॉर्म में रहेगा. चौथी बात, फैटी एसिड विच अकर इन नेचुरल फैट आर यूजुअली मोनोकार्बोक्सिलिक and contain an even number of carbon atom, as these are synthesized from 2 carbon unit. तो जो नेचुरली हमको मिलेंगे फैटी एसिड, नेचुरली फैटी एसिड कहाँ से मिलेंगे, तो हम अपने घर में जितने तरह के ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, राई ऑयल, देन पीनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, रेपसीड ऑयल, जितनी तरह के भी हम ऑयल खाते, तो उसमें जो फैटी एसिड्स रहते वो हमेशा 2 कार्बन यूनिट के, मतलब दोहरे नंबर में होंगे, यानी 18 कार्बन की चेन, 16 कार्बन की चेन, 14 कार्बन की चेन, ऐसे. ये जो फैटी एसिड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसमें यू कैन सी
the angle between two carbon bond is 109 degree. The total height is 4.8 angstrom, and this is the example of stearic acid molecule. Okay, तो लास्ट में CH3, बाकी CH2 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 और इधर COOH. How many carbons are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. Okay. So this is the 18 carbon stearic acid, and always it forms the zigzag pattern. Number 5. These are usually straight chain derivatives. The chain may be saturated. Saturated का मतलब क्या है? हर दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा. Contain only single bond. और unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid का मतलब क्या है? कि हर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जहाँ भी हर में, it will be not found in every. If there is a single, instead of the single bond, double bond is only here, then whole fatty acid is considered as a unsaturated. सिर्फ एक भी डबल बॉन्ड कहीं पर भी है तो हम पूरे फैटी एसिड को कैसा बोलेंगे? अनसैचुरेटेड. फैटी एसिड में एक भी डबल बॉन्ड है, देन इट इज कॉल्ड एज अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. आगे क्या बोला? सम फैटी एसिड कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो वो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया कि यहाँ पे H की जगह OH हो सकता है या ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड फैटी एसिड. फैटी एसिड स्टोर एज एनर्जी रिजर्व फूड मटेरियल एंड एस्टर लिंकेज ऑफ ग्लिसरॉल टू ट्राइग्लिसराइड. ये फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड विल बी आयोनाइज. अगर ये पानी में मिसिबल है तो यहाँ पे O- रहेगा. तो ये सारी चीजें अभी की भी रिपीट हो गई. लेट वी सी द सम एग्जांपल्स ऑफ एमिनो एसिड. कुछ एग्जांपल्स आप देख ले. तो सबसे सिंपल एमिनो एसिड कौन सा है? फैटी एसिड. द सिंपल फैटी एसिड इज एसिटिक एसिड CH3COOH दैट वी नो. तो इसमें हम सैचुरेशन नहीं है, कहीं पर भी अनसैचुरेशन नहीं है. तो ये 0 क्या बताता है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड पूरी चेन में एक भी है तो नहीं है. किसके लिए? ये सारे 0 है, बराबर. इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? तो क्या 2. सो 2.0 मतलब क्या होता है? इट इज ऑफ एसिटिक एसिड. प्रोपियोनिक तो 3 कार्बन वाला और सैचुरेटेड. तो पीछे अब 0 लिखेंगे तो सैचुरेशन हो जाएगा. सो प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COOH. ब्यूटायरिक एसिड CH3CH2CH2COOH. वैलेरिक एसिड और हम उसको बोलेंगे पेंटेनोइक एसिड. बाद में हेक्सेनोइक, ऑक्टेनोइक, डेकेनोइक. तो इसका सैचुरेटेड फैटी एसिड का नेम क्या है? कैप्रोनिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, कैप्रिक एसिड, ल्यूरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड. ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? लिग्नोसैलिक एसिड 24 कार्बन. तो ये सारे जो पीछे लॉन्ग वो 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24. तो ये सारे हमको नॉर्मली नेचुरल ऑयल्स में मिलेंगे. तो आपको एग्जाम में खास 2 याद रखने कि स्टीयरिक एसिड में कितने कार्बन है? 18 और पामेटिक में 16. ये 2 आपको एग्जाम में याद रखने हैं. तो यहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं है. एज कंपेयर टू दैट वन, लेट्स लुक ऑन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमको क्या मिलेगा कि ये 16 नंबर, मतलब देर इज अ 16 कार्बन चेन कंटेनिंग फैटी एसिड. उसके पीछे क्या है?
उसके पीछे कि 1 नंबर, तो 1 नंबर आपको क्या बताएगा कि उसमें एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसैचुरेटेड ग्रुप्स है। जो एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है वो कौन से नंबर पे है? देन इट इज अ 9। तो ये आपको कैसे लिखना है? ये रहा 9 नंबर, मतलब आपका लास्ट में रहा CH3, ओके, और इस तरफ रहा COOH। तो COOH यानी ये फर्स्ट कार्बन, उसके बाद 7 फंक्शनल ग्रुप्स है, CH2 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 ऐसे करके 7 है। तो 7 ये हो गए, 7 और 1 8, और ये 9th पोजीशन पे C डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड C। तो C डबल बॉन्ड C हो गया, दैट इज अ अनसैचुरेशन। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल्स है 18Gem2, यानी 18 कार्बन की फैटी एसिड में 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और जो 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनके लोकेशन कौन से है? एक 9 नंबर और एक 12 नंबर पे। तो ये भी आपको पता चल जाएगा इससे। देखो ये 1 कार्बन फिर 7 कार्बन, तो 1 7 यानी 8, फिर ये 9 पे हो गया डबल बॉन्ड, फिर 10 11 और ये 12 पे हो गया। सो ऑलवेज द रीड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वहाँ से आपको नंबरिंग काउंट करने हैं। जैसे थर्ड एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 18 कार्बन का, उसमें 3 अनसैचुरेशन है, 9 पे 12 पे और 15 पे। तो ये रहा 7, फिर ये 9 पोजीशन, ये 12 पोजीशन एंड ये 15 पोजीशन, ये 16 17 एंड 18। So this is how we can write down the unsaturated fatty acid. Okay. What are the examples of unsaturated fatty acid? आपको एक कॉमनली याद रखना है, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड इट इज अ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर उसमें 2 है 18Gem2 तो डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 3 है तो ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो दिस इज द ऑल ओवर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। देन वी सी just like essential amino acid there is a essential fatty acid। essential का मतलब क्या है? हमको खाने में जरूरी है, essential in our food, they should be incorporate in our diet। क्यों? because these fatty acids are not synthesized by our body। हमको लिपिड खाने ही चाहिए। कैसे, कौन से चाहिए? सो पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलेनिक एसिड जो 8Gem2 9 और 12 पे थे, लिनोलेनिक एसिड जो 3 टाइम्स था 18Gem3 9 12 और 15 जो लास्ट एग्जांपल देखा, फिर आर्किडोनिक एसिड जिसमें 4 अनसैचुरेशन है 5 8 11 और 14 पे, दे बिकम एसेंशियल। If its precursor linolenic acid is not provided in the diet insufficient, the structure of EFA essential fatty acid is given in the figure। तो वो तो हमने अभी देख लिया प्रीवियस स्लाइड में, ये सारे ये जो एग्जाम्पल्स है वही है, और एसेंशियल फैटी एसिड से सब। एसेंशियल फैटी एसिड नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? तो फंक्शन होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर। तो ये फैटी लीवर क्या है? व्हाट इज फैटी लीवर? तो जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में जो जमा होगी चर्बी जिसको बोलेंगे मेद, दैट डिपोजिट इन द लीवर, और लीवर फंक्शन में भी डिक्रीज। तो लीवर जो उस पर लोड रहेगा और लीवर का काम धीमे धीमे कम होता जाएगा। यू आर सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीजेस। तो फैटी लीवर जो है इट इज़ अ हार्मफुल फॉर द बॉडीज फंक्शनिंग।
तो उसके लिए हमको एसेंशियल फैटी एसिड निकालने हैं जो लीवर में से डिपॉजिटेड फैट्स है उसको कम रखेगा। दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप कंपाउंड नोन एज द आइकोसैनोइड्स। तो हम बाद में देखेंगे उसको। अगर आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं मिल रहे हैं, द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड रिजल्ट इन पायरोनोडर्मा और टोड स्किन। टोड स्किन क्या होती है? तो एक स्किन ड्राई हो जाती है, सूख जाती है और हैवी थिकन हो जाती है। ओके, तो एक डिसीज है जिसमें स्किन है वो एकदम रफ और जगह जगह पे आपको ऐसे क्यूमुलेशंस मिलेंगे। ओके, और थिकन स्किन मिलेगी एकदम जैसे क्या बोले, टोड यानी मेढक है, तो मेढक की जो सरफेस का है ना उसके जैसा आपको दिखेगा। सो दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हॉर्नी इरप्शन, और वो रफ हो जाएगी। अगर आपके साथ किसी का भी हाथ घिस जाएगा तो उसको भी वो आपकी हार्ड स्किन है उसको फील होगी कि आपके जो स्किन है उस पर हॉर्न्स यानी कांटा जैसे एकदम क्या बोलेंगे, हार्डनेस फील होंगी। इज इट? सो दैट इज अ हॉर्नी इरप्शन ऑन द पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट्स ऑफ द लिम्स, यानी अपने जो हाथ और पैर है लिम्स बोलेंगे उसको। तो अपने हाथ और पैर पे ऐसे स्किन ड्राई हो जाएगी। ऑन द बैक ऑफ बकेट लॉस ऑफ हेयर एंड पुअर वुंड हीलिंग। बराबर, हमारे पीछे स्किन है उस पे हेयर जो है वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये सारी डिस्कशन थी फैटी एसिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करेंगे, हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड देख लेंगे।